تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سارے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہ، ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے، طوعا و کرہا، چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے۔ سجدہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں السجدہ تو فی الاصل التذلل، سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وضع الجبہہ بقصد العبادہ، عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، ایک امتیاز اور دوسرا یہی وضع الجبہہ والا معنی، عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی العالی کے جو نغمے الاپے جاتے ہیں، سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے۔ انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، باقی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن میں پتہ چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، والشمس والقمر، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب وہ استوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے، اور جب وہ دوبارہ مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں، ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے۔ درخت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہے، مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا، اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں۔ درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں۔ سجدہ انتہائی ذلت، اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے۔ پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اپنے عجز کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر، اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا،
सर उठा तो कह अल्लाह अकबर, मौला तू बहुत बड़ा है, तू इतना बड़ा है कि मेरी इबादतें तेरी बड़ाई को खिराज पेश नहीं कर सकती, इसलिए मैं सजदे में झुक के भी कह रहा हूं कि तेरी इबादतों का हक मुझसे अदा नहीं हो सकता। तू इतना बाला है, इतना बड़ा है, इतना अजीमुल मर्तबत है कि तेरी इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की इबादत इतनी कसरत से की, हत्ता ततबर्रमा कदमा हो, यहाँ तक कि हुजूर के दोनों पांव पे सूजन आ जाती, और अल्लाह खुद फरमा रहा है महबूब सारी रात जागा न कर, कभी सो भी तो लिया कर, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं मा अबदना का हक का इबादत, अल्लाह तेरी इबादत का जो हक था तेरे बंदे से अदा ही नहीं हो सका। इतनी इबादत करने के बावजूद भी कहा कि तेरी इबादत का हक अदा नहीं हो सका, और यकीनन बंदा उसकी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। वो जितना बुलंद व बाला है, जितना वो अजीमुल मर्तबत है, जितनी उसके शाने हैं, बंदा जितना मर्जी झुक जाए, उसकी अजमतों और उसकी बड़ाइयों को खिराज पेश करने का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए झुककर जब सर उठाया फिर उसकी बड़ाई बोली, अल्लाह अकबर, मालिक तू तो सबसे बड़ा है, तू तो इतना बड़ा है कि मैं सजदे में झुककर भी तेरी बड़ाई को खिराज पेश नहीं कर सका, और तेरी बड़ाई के सामने सर झुकाकर भी अपनी इज्जत का इजहार करके भी मैं फिर भी खिराज नहीं दे सका, और भी झुकने कि मेरे अंदर सकत होती और कोई हालात ऐसे होते फिर भी तेरी बड़ाई का हक अदा ना हो सकता। तो इतना बड़ा है और अजीमुल मर्तबा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे को सबसे ज्यादा कुर्ब सजदे में मिलता है, और सजदे में इसलिए फरमाया कसरत के साथ दुआ मांगा। और एक रिवायत के लफ्ज हैं कि जब बनी आदम औलाद आदम सजदे में सर रख के सुभान रब्बियल आला के नगमे अलापती है, तो शैतान पीटता है, रोता है, चीखता है कि मुझे सजदे का हुक्म दिया गया और मैंने इनकार करके अल्लाह की नाराजगी मूल ले ली और जहन्नम का हकदार बना, और इसको सजदे का हुक्म दिया और इसने सजदा करके अल्लाह की रिजा हासिल कर ली और जन्नत का हकदार बन गया। शैतान को एक सजदे का हुक्म दिया लेकिन उसने उसे एक सजदे से भी इनकार किया। फरिश्तों को एक सजदे का हुक्म दिया लेकिन उन्होंने दो सजदे, ये जो हम भी नमाज पढ़ते हैं, इरशाद है बरकाऊ वस्जुदू, रुकू करो और सजदा करो, तो इसी तरह का हुक्म बरकाऊ है और इसी तरह का हुक्म वस्जुदू है। रुकू करो और सजदा करो, रुकू हम एक करते हैं, सजदे दो करते हैं, या तो फिर रुकू भी दो किया करें या फिर सजदा भी एक किया करें, क्योंकि अमर है अमर, और अमर तकरार का तकाजा नहीं करता और ना इसका एहतमाम। मैं आपको एक बात कहूं तो एक मर्तबा आप उसको तस्लीम कर लें, अमर की तामीर है, तो अमर तकरार का तकाजा नहीं करता। तो कहा गया सजदा करो तो एक सजदा करना वाजिब है, लेकिन हम सजदे दो। उलमा कहते हैं कि जब फरिश्तों ने सजदे में पेशानी रखी और सुभान रब्बियल आला के नगमे अलापे और सजदे से सर उठाया, देखा कि एक अकड़ा खड़ा है, फिर दोबारा सजदे में सर रख के सुभान रब्बियल आला कहना शुरू कर दिया, मेरे मालिक तेरा शुक्र तूने हमें सजदे की तौफीक अता फरमाई। इसलिए सजदे दो हो गए और रुकू एक रहा। सजदा इंतहाई जिल्लत है और इबादत का इंतहाई दर्जा है। सजदे में सर रख के जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। शैतान ने अल्लाह के रूबरू उसकी इज्जत की कसम आगे कहा, मुझे तेरी इज्जत और जलालत की कसम, मैं तेरे बंदों को तेरे तक नहीं पहुंचने दूंगा। इनके दाएं से आऊंगा, इनके बाएं से आऊंगा, इनके आगे से आऊंगा, इनके पीछे से आऊंगा, इनकी चारों समतें घेर लूंगा और इनको तेरे तक नहीं पहुंचने। हुजूर फरमाया जालिम दो रास्ते भूल गया, कोई बंदा सजदे में पेशानी रख के उसको पुकारता है तो मालिक उसको भी रास्ता अता फरमा देता है, और कोई हाथ उठा के दुआ मांगता है तो मालिक उसकी भी रद्द नहीं फरमाता। बल्कि हदीस के लफ्ज़ इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़ा, तुम्हारा रब सखी भी है, जिंदा भी है, करीम भी। बंदे जब उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है इनके उठे हुए हाथों को खाली कैसे दूं। तो बंदे उसके हुजूर जब मांगे, मुतालबा करें तो मालिक बंदों की दुआओं को कबूल करता है। तो ये दो रास्ते खुले, हाथ उठा के दुआ मांगे या सजदे में सर झुका के दुआ मांगे, तो मालिक अपने बंदों की दुआ को कबूल करता है, शर्फ कबूलियत बख्शता है। सजदा बंदगी का इजहार है, और इंसान जितने मर्जी मर्तबा कमाल पे पहुंच जाए उसके लिए एजाज ये है कि वो बंदा हो। हुजूर मेराज की कुर्बत खास में जब पहुंचे तो मालिक ने अपने महबूब से पूछा, बेमा उशर्रिफु का या अहमद, प्यारे बता तुझे किस चीज से नवाजा है। तो उस कुर्बे खास में महबूब ने क्या इंतखाब किया और किस चीज का मुतालबा किया। हजरत इमाम राजी ने लिखा और भी उलमा ने मुल्ला जीवन तफसीरात अहमदिया में लिखते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुर्बे खास में अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बिनिस्बती इलैका शर्रिफनी बिल उबूदिय्या, ऐ अल्लाह सारी जिंदगी सजदों में पेशानी रख के मैं कहता रहा हूं कि तू मेरा अल्लाह है, आज तू भी तो कह दे कि तू मेरा बंदा है।
तू मुझे बंदा कह के पुकार दे। बंदगी में जो मजा है बंदे के लिए, इससे बड़ा और कोई एजाज हो नहीं। हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि विलायत में सबसे कमाल मर्तबा जो बंदे को नसीब होता है वो मुकाम बंदगी है। बंदगी वो दौलत है कि जो बंदे को कायनात की कुव्वतों के सामने सीना सफर होने की कुव्वत है। जब खुदा के सामने बंदा झुक जाता है तो फिर किसी और के आगे नहीं झुकता। ये दर्स है तौहीद का, ये सबक है सजदे का। अल्लाह को सजदा करने वाला किसी और के आगे पेशानी नहीं झुका सकता, और अगर कोई अल्लाह को भी सजदे करता है और किसी और के आगे भी पेशानी झुकाता है तो उसने सजदे की रूह को समझा ही नहीं। तौहीद के दामन में आबाद होने वाला कायनात की हर शय से बेखौफ हो जाता है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, मैं रूह जंगल में खड़ा था, एक आदमी शेर के ऊपर सवार हुआ, हाथ में सांप का कोड़ा पकड़ा है, मेरे पास आके रुक गया। मैं डर गया, मुझे कहने लगा सादी डर गए हो। मैंने कहा बात ही डरनी है। कहने लगा सादी तू खुदा का हो जा, खुदा की खुदाई तेरी हो जाए। अल्लाह के हुजूर झुकने वाला दुनिया के सामने खड़ा होगा, उसको ये सजदा कायनात के सामने दर से कयाम देता है। जंगल का बादशाह शेर होता है, और जो जानवर कमजोर भी इस बादशाह की कुरब में रहते हैं वो जंगल के बड़े बड़े जानवरों को भी खातर नहीं होता। क्यों? उनकी अपनी जात में तो इतनी कुव्वत नहीं होती, लेकिन उन्हें इस शय का एहसास होता है कि मैं जिसकी सोहबत में रह रहा हूं वो इस जंगल का बादशाह, उसकी कुव्वत का लोहा सारे मानते हैं, और उसके कुरब में रहने वाले, उसकी गोद में रहने वाले किसी और को खातर में नहीं लाते, और किसी का खौफ उनके सीने में पैदा नहीं होता। तो जो मालिक को मानने वाले हैं, तौहीद के दामन में पनाह लेने वाले हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कायनात की किसी शय से नहीं डरते। बल्कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जो कुरान मजीद में आता ना इत्तकुल्लाह, इसका माना अल्लाह से डर जाओ। इत्तकू का माना डर जाओ, लेकिन इसकी निस्बत अगर और होगी, इसका मफूल कोई और होगा तो फिर डरने का मफूल नहीं होगा। इत्तकुल्लाह कुरान में लफ्ज़ नहीं है। इत्तकुन्नार, इसका माना ये नहीं करेंगे आग से डर जाओ, जबकि लफ्ज़ तो वही है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इत्तकुन्नार, इसका माना होना चाहिए आग से डर जाओ। जो लोग लफ्ज़ी तर्जुमा करने बैठ जाते हैं और शरीयत के मिजाज से आगाह नहीं होते, वो तर्जुमातुल कुरान में बड़ी गलतियां करते हैं। इसलिए हर कसो नाकस का तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि कुरान की रूह को और मंशा को और शरीयत के मिजाज को इसने समझा है। तो इत्तकुल्लाह का माना अल्लाह से डर जाओ, इत्तकुन्नार वही माना होना चाहिए आग से डर जाओ। लेकिन उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन ने इसकी तस्रीह की, फरमाते जब इत्तकुन्नार कहेंगे तो इसका माना ये नहीं होगा कि आग से डर जाओ, इसका माना होगा आग से बच जाओ। इत्तकुल्लाह का माना अल्लाह से डर जाओ, इत्तकुन्नार का माना आग से बच जाओ। लफ्ज़ वही है, लेकिन मफऊल के बदलने से मफहूम बदल गया। इसलिए कि जो मोमिन है वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, उसके सीने में किसी का खौफ नहीं पनप सकता। हुकूक औलाद के हवाले से मैंने एक हुकूक के अंदर कहा था, वो अफराद मौजूद होंगे इस जुम्मा में, उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि हम बच्चों की जब तरबियत करते हैं तो उनके नफ्सियात का हमें लिहाज रखना है। खास तक बच्चा रो रहा होता है, माँ ने उसको चुप कराना होता है, तो जरूरी काम होता है। बच्चा चुप नहीं करता तो माँ उसको चुप कराने के लिए बड़े जतन करती है। तो बाज़ बात ऐसा होता है कि बच्चे को चुप कराने के लिए माँ जल्दी से उसको अपनी छाती से चमटा लेती है, तो कहती है बच्चा चुप करो, बिल्ली आ गई। मैं कहा करता हूं कि ये बच्चे की नफ्सियात पे बहुत बड़ा हमला है, और बच्चे को बुज़दिल बनाया गया है। जो बचपन में जिस बच्चे को बिल्ली से डराया गया, बड़ा होकर वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बच्चे के नफ्सियात के अंदर ये शय बचपन में ही डाली जाए कि अल्लाह के अलावा किसी का खौफ उसके सीने में पनप नहीं ना पाए। ये है तरबियत जो हम अपनी औलाद की करें, और एक ये तरबियत है जो अहले ईमान की मोहम्मद अरबी ने की थी। 313 होके जबल की कुव्वतों के खिलाफ खड़े। जब उमैर ने जाके रिपोर्ट दी ना अबू जहल को कि वो तो 3 ऊंट खा सकेंगे, और 300 से कुछ कम और कुछ ज्यादा उनकी तादाद है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं खूब आबादियां देख आया हूं, मैं खूब टीले देख आया हूं। तो अबू जहल ने सुनादीद कुरैश को बुलाकर कहा, उमैर की रिपोर्ट सुनो कितनी हौसला अफजा है, सुबह लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, सुबह तो दसियां इकट्ठी करो, जकड़ जकड़ के मुसलमानों को ऊंटों की पुश्तों पे बांध लेंगे, और फिर सेने हरम में जाके काबतुल्लाह की दीवारों के साथ बांध देंगे। लोगों को तमाशा दिखाया करेंगे कि ये नया दीन लेकर आए, फिर ये इनका त्योहार है। जब उसने रऊनत भरे इतनी जुबान से इसके जुमले निकाले तो मैं जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा है, इब्न हिशाम में लफ्ज़ मौजूद है, उसने कहा बला किन राया तो या माशरा कुरैशिन अल बलाया तहमिलुल मनाया, है कुरैश के सरदारों इतने भी तकब्बुर में ना हो। मैं अपनी इन आंखों से देख कर आया हूं कि यसरत की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पर मेरी मौतें उठा के ले आई हैं। उनके बदन पे चिथड़े हैं, उनके पेट कमर से लगे हुए हैं, लेकिन वो जख्मी सांपों की तरह पेचो ताप खा रहे हैं। कल उनमें से कोई नहीं मरेगा जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता। तुम तो ये कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मानते हो तो रात के अंधेरे में भाग सकते हो तो भाग जाओ। उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है जो मरने के लिए आई है। इतनी बड़ी कुव्वत को देखकर उनके सीने में
खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप जानते हैं बदर की तारीख गवाह है कि 2 घोड़े थे, एक रिवायत में सिर्फ एक घोड़ा था, 6 ज़रह थी, 8 तलवारें, 70 ऊंट थे, और जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्हें खजूरों के डंडे तोड़ दिए और हवाओं में लहराने शुरू कर दिए। जब ये मलकूती काफिला मदीने से बाहर निकल रहा था, दुकानों पे यहूदी ईसाई बैठे थे। उन्होंने कहा, मुसलमानों किस बलबूते पे जा रहे हो, किस बलते पे जा रहे हो, कौन सा आसरा है तुम्हारा, हालात हरबो ज़रब तो तुम्हारे पास मौजूद है, इतनी बड़ी कुव्वत से टकराने जा रहे हो जो कील कांटे से और असले से आलात हरबो ज़रब से लेस होके आई है, तुम मुकाबला कैसे कर पाओगे, किस बलबूते पे जा रहे हो। हुजूर कमली ओढ़े साथ साथ चल रहे थे। सहाबा ने इशारा करके कहा, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न बाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पे। अब उस माहौल में जबकि कुफार पूरा लाओ लश्कर लेके आए और अबू जहल ने कहा, ऐलान कर दो, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ये उनके बुत का नाम है, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं, हमारे पास नात है, तुम्हारे पास नात नहीं, हमारे पास मनात है, तुम्हारे पास मनात नहीं, हमारे 360 खुदा और तुम्हारा एक खुदा, मुकाबले थे। उसने कहा, खड़े होकर ऊंची जगह पे कहा, अपने नकीब को ऐलान करो, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। हुजूर के कानों में आवाज पड़ी, फरमाया, अली तुम भी ऊंचे टीले पे खड़े हो जाओ और तुम इनको जवाब में कहो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं है। और फिर हुजूर ने सजदे में सर रख दिया। सजदा इतनी बड़ी कुव्वत है, हजारों एटम बम्बों के अंदर वो कुव्वत नहीं है जो सजदे के अंदर ताकत रखती है। आज दुनिया से हम डर रहे हैं इसलिए कि हमारे सजदे छिन गए, हमारे सजदों की आबरू छिन गई है, हमारे सजदों में वो हरारत और गर्मी नहीं रही, वो दिक्कत और वो नरमी नहीं रही। बदर का मैदान है, 1000 का लश्कर जर्रार मुकाबले में, और वो पूरे लाओ लश्कर के साथ नाजो तफाकुर के अंदर मुसलमानों को मिलिया मेट कर देने के जज्बों से दांत पीस रहे हैं कि आज मुसलमानों को कच्चा चबा देंगे। मुसलमानों के साथ पास सिर्फ 8 तलवारें और उनके बतन में खाने के लिए कुछ नहीं। जिस खजूर को चूस के रोजा रखते हैं उसी खजूर को चूस के रोजा कफ्तार करते हैं। ये हालत मुसलमानों की, बदन पे चिथड़े लगे हुए कपड़े हैं, अजीब हालत है। फिर कौन सा आसरा था जो मुसलमानों के काम आया? मुस्तफा करीम ने मस्जिद आरिश में सजदे में पेशानी झुका दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था, सारी रात मुस्तफा रोते रहे, आंखों में आंसू, हुजूर की चादर सर अनबत से सिलट के हुजूर के कंधों पे आ जाती, फिर कंधों से पुश्त पे आ जाती। मैं उठा के हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पे रखता और कहता, हुजूर बस करो। हुजूर बार बार रोते और अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर डालकर इल्तिजाएं करते। लफ्ज क्या थे महबूब की जुबान पे, आज तक ऐसी नाज वाली दवा किसी ने नहीं की जैसी दुआ मुस्तफा जाने रहमत ने की। मुस्तफा करीम सजदे में सर रखा है और क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्दि अबदा। मेरे मालिक, मैं नहीं कहता कि इन लोगों को बचा ले, देख मेरी जिंदगी की कमाई यही 313 है जो मैं तेरी चौखट पे लेके हाजिर हो गया हूँ। मेरी जिंदगी का कुल असासा, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया ओहे अबू कुबैस पे किए गए दर्सों का नतीजा, अक्कास की मंडी के अंदर दिए गए दर्सों का नतीजा, और जिलमजाल के मेले में तेरे दीन की तबलीग का नतीजा, ताइफ के बाजारों में पत्थर खा खा के जो तबलीग की उसका नतीजा, रस्ते में गड़े, रस्ते में बिछते हुए कांटे, और मक्के के बाजारों में मेरे बदन के ऊपर पड़ती हुई ओजरियां, मैंने फिर भी तेरा कलमा बुलंद किया। मेरे मालिक, मेरी पूरी जिंदगी का गदार, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी जिंदगी के आंसू, मेरी जिंदगी का रोना सेने हरम के अंदर काबतुल्लाह की छांव में सजदे कर करके, तो कभी मैंने उमर मांगा, कभी मैंने हमजा मांगा, तेरे दीन के लिए मैंने जो एक एक करके तिनका जोड़ा और ये छोटा सा घोंसला बनाया। ये घोंसला अब बिजलियों की जद में है, कुफ्फार की बिजलियां इस घोंसले को जला देना चाहती हैं। मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये घोंसला और मेरी ये मुट्ठी भर जमात और ये चंद मेरे लोग और ये मेरा सरमाया और असासा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी जवानी का सरमाया जो मैंने तेरे सामने ला के रख दिया है, मैं ये नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन मेरे मालिक अगर ये ना रहे तो कयामत तक फिर तुझे भी खुदा कोई नहीं कहेगा। इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्दि अबदा, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तेरे नाम के डंके बजाने वाले भी दुनिया पे नहीं होंगे। ये हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और सजदे में सर रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में अश्क जारी है, सजदे से कुव्वत हासिल की जा रही है। दुश्मन के मुकाबले में मुस्तफा करीम सजदे में सर रख के अल्लाह से आरज़ू कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अचानक हुजूर ने सर उठाया, मैं खुश हो गया कि हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाया, अबशिर या अबा बकर, हाज़ा जिब्रील आखिज़ुम बिअनान फरसिही। अबू बकर बशारत हो, वो जिब्रील अल्लाह की मदद लेकर आ गए। ये सजदे थे जिन सजदों ने जालिम और जाबिर कुव्वतों का मुंह तोड़ के रख दिया। हजरत अली मुर्तजा रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं, मैंने हाथ में तलवार थामी
और मैदान में कूद पड़ा। मैंने कई काफिरों को वास्ते जहन्नम की, फिर पलट के देखा कि मैं हुजूर की ज़ियारत कर लूं, लेकिन मुझे हुजूर नजर ना आए। मैंने ढूंढा तो एक समत हुजूर ने पेशानी सजदे में रखी हुई थी और जुबान पे लफ्ज थे या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे, या हय्यो या कय्यूम का वजीफा पढ़ते जा रहे थे और सजदे में पेशानी थी हुजूर। मैं फिर दोबारा आया, उस सजदे से जोश लेकर, उस सजदे से गर्मी और हरारत लेकर, और फिर दुश्मन की सफों में कूद गए। मैंने एक काफिर को वास्ते जहन्नम किया, फिर ज़ियारत के लिए वापस आया, देखा तो फिर सजदे में हुजूर ने सर रखा हुआ और यही कह रहे हैं या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक का अस्तगीस। ये जुमले हुजूर की जुबान पे और सजदे में हुजूर की पेशानी। मैं फिर गया, फिर आया, कई बार ऐसा हुआ, मैं काफिर को कत्ल करता, फिर आता, हुजूर को सजदे में देखता। फरमाया फिर हुजूर ने तलवार थामी और मुस्तफा करीम मैदान जंग में कूद पड़े। लोग भर चढ़ के दुश्मनों पे हमला करते थे, लेकिन जो सबसे आगे काफिरों की सफों में कूद के हमला कर रहा था वो आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सजदे से वो कुव्वत मिलती है, सजदे से वो नूर और रोशनी मिलती है जो पूरे जमाने में उजाला किया जा सकता है। आज 56-57 इस्लामी मुल्क दुनिया के सामने रुसवा हो रहे हैं और दुनिया के सामने सजदा रेज हैं, इसलिए कि वो एक खुदा के सामने सजदा करना भूल गए। एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है नजारा। आओ उसके हुजूर झुको, उसके हुजूर झुकने वाला किसी के आगे नहीं झुकता। सजदा उसको कुव्वत देता है। तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का रास्ता हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शाम सहर से जावेदा हो जा, गुजर जा बनते सैले तुम बरू वो हो बयाबा से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा कहां हो जा। मालिक के हुजूर जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है, अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाज़िल होती है। एक रिवायत में आता है जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो क़याम ही करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह जो है इसके बदन से निकाल के एक समत कर दो, ताकि मेरा बंदा इस हालत के अंदर मेरे हुजूर हाजिर हो के वो गुनाहों से पाक और साफ हो। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके सारे गुनाह उसके बदन से उतार के समझ और बंदा मुसल्ले पे सुबहान रब्बियल आला के नगमे अलापता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जब सलाम फेर के नमाज खत्म करके दुआ करके जाने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक ये जो गुनाह उतार के एक साइड पे रखे थे ये दोबारा इसको दे दे। अल्लाह फरमाता है जिसकी झोली से गुनाह निकाल लिए थे दोबारा उसकी झोली में नहीं डाला। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज है कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके कंधों के ऊपर सारे गुनाह आ जाते हैं और उसके सर के ऊपर गुनाह आ जाते हैं। जब रुकू में जाता है तो कंधों वाले गुनाह गिर जाते हैं और जब बंदा सजदे में सर सकता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को खत्म कर देता है और वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हजरत सुलेमान फारसी एक दिन एक दरख्त के नीचे खड़े, आपने दरख्त की शाख को पकड़ के जुम्बश दी, हरकत की, मौसम खज़ां था, दरख्त की शाख के सारे जर्द पत्ते गिर गए। एक सहाबी पास खड़े थे, उन्हें पूछने लगे उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने दरख्त की शाख को यूं हिलाया क्यों? उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बता दें कि आपने दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। कहा सुनो फिर एक दिन मैं और चंद सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक दरख्त आया, उसके नीचे हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस तरह दरख्त की शाख को पकड़ के हिलाया, यूं पत्ते झड़ गए। हम इस मंजर को देखते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फारसी तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने इस दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है? तो मैंने अर्ज की हुजूर आप बता दें कि आपने क्यों हिलाया है। फरमाया सलमान जिस तरह इस दरख्त की शाख को हिलाया गया और सारे पत्ते झड़ गए, जब कोई बंदा सजदे में सर रखता है, नमाज पढ़ता है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, वो पाक और साफ हो जाता है। एक दिन फरमाया सहाबा अगर कोई बंदा उसके घर के सामने से नहर गुजरती और वो दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुस्ल करे तो बताओ उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा? अर्ज की नहीं। फरमाया इस तरह जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन के ऊपर गुनाहों का मैल नहीं रहता। फरमाया सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों का मिराज है। इमादुद्दीन अस्सलात, नमाज दीन का सुतून है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनसूबा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र किया, यानी काफिरों वाला काम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातुल वुस्ता, इस आयत करीमा के तहत एक औरत मदीने की गलियों में चीख रही है और कहने लगी मुझे हुजूर के दर का पता बताओ। हुजूर की चौखट का पता बतलाया गया, वो हाजिर हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की हुजूर मेरा खामद सफर पे गया हुआ था और मैंने उसकी अदब मौजूदगी के अंदर ज़ना कर दिया, हमल ठहर गया और जो बच्चा पैदा हुआ मैंने मारे शर्म के
उस बच्चे को सिरके के मर्तबान में डाल दिया और फिर उसी सिरके से मैं लोगों को फरोख्त करती रही। अब जबकि मेरा ज़मीर जागा है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मुझे बताया जाए कि मेरे गुनाह का भी कोई कफारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो तूने ज़ना किया है उसकी सजा रज्म है, क्योंकि तू शादीशुदा है, और जो तूने बच्चे को कत्ल किया है, कत्ल की सजा कत्ल है, और जो तूने सिरका बेचा है फकत इर्तकब कबीरा, तूने कबीरा गुनाह किया है, उसकी सजा तो क़यामत के दिन पाएगा। उसके बाद हुजूर फरमाया, इन तीनों गुनाहों की ये सजा है, लेकिन जिस तरह तू घबराई हुई आई थी, मैं तो ये समझा था शायद तेरी नमाज असर कदा हो गई है। अब आप अंदाजा करें कि नमाज की अहमियत क्या है और हम इस बात में कितनी सुस्ती करते हैं। किसी से पूछा जाए ना, आओ नमाज पढ़ने चले, वो कहते हैं बस यार मेरे कपड़े मेरे पाक नहीं। तेरे कपड़े कैसे पाक रह सकते हैं? तू अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता, तेरे कपड़े भी पलीद है, तेरा दिल भी पलीद है, उसके हुजूर झुक के तो देख, कल भी सुजा कर देगा, तेरी रूह को भी पाकी दे देगा, तेरे कलब को भी तहारत बख्श देगा। उसके हुजूर आ झुक, उसके हुजूर सजदों से अल्लाह के हुजूर खिराज पेश कर अपनी मोहब्बतों का। जब बंदा सजदे में सर रखता है, अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है, मेरे बंदे को देखो ना, बिलाकर मेरे हुजूर ही झुका है ना। कितने गुनाह किए इसने, कितने जुर्म किए इसने, लेकिन बिलाकर मेरे हुजूर आया और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ने वाला, बल्कि एक रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर फरमाया, जब बंदा नमाज के इरादे के लिए उठता है और वुजू करने के लिए जब पानी का पहला कतरा चुल्लू में लेता है, जो ही उसके बदन से वुजू का पानी छूता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिस नमाज के कष्ट के लिए उठे और वुजू करें और पानी छूते ही गुनाह माफ हो जाएं, अगर उस नमाज का आला दर्जा सजदा कर लिया जाए तो फिर मालिक की कितनी रहमत नाज़िल। ये कितनी बड़ी दौलत है, ये कितना बड़ा सरमाया है जिससे हम लोग महरूम रह जाते हैं। आओ अल्लाह की रहमतें सजदे में ढूंढे, सजदे में पेशानी रख के जब हम उसकी रहमत को मांगे तो वो मालिक हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल करेगा। आज पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों के साथ जो हालात हैं वो किसी से मक्की नहीं। कोई कहता है कि मुआशी तौर पे मुसलमान कमजोर है, इस वजह को भी मैं तस्लीम करता हूँ। मुसलमान के पास आलात हर्बो ज़रब भी मौजूद नहीं है, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। सियासी तौर पे मुसलमान कमजोर हैं, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। ये सारी वजह अपनी जगह पे, लेकिन ये भी तो सुनो, मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ है। अफरादी कुव्वत इतनी कभी भी मुसलमानों की नहीं हुई। इस वक्त मुसलमानों के पास एटमी ताकत मौजूद है, इतनी कुव्वत अस्करी कभी भी मुसलमानों के पास नहीं हुई थी। 56 इस्लामी मुल्क हैं जिनमें कीमती मादनियात से और तेल की दौलत से और सोने की कीमती मादनियात से ये मुसलमान माला माल है। क्या कुछ नहीं है जो मुसलमानों के पास न हो, लेकिन एक दौलत छीन गई मुसलमानों के पास, वो सजदे की आबरू, वो सजदे की इज्जत, वो पेशानी रख के उस रब को पुकारना जो सबसे बाला है, जो सबसे बाला है, जिसने मूसा के फिरौन को नील की मौजों में डबो दिया। या पूरी उम्मत मुस्लिमा 1 अरब 40 करोड़ इंसान सजदे में सर रख के सुभान रब्बियल आला के नगमे आलाप के अपने रब से गुजारिश करें और अपनी उम्मत का रोना रोए। कश्मीर में लुटती हुई जवानियां और कलकुर्स के अंदर बहता हुआ खून, शबरखान से लेकर ताबलो किंधार तक और मूसल से लेकर तकलीफ तक मुसलमान के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं, अपने रब के हुजूर उसका टुकड़ा सुनाएं और अपने मालिक को कहें, मेरे मालिक हम लुट गए, हम कट गए, हम पिट गए। असले भी मौजूद, अफरादी कुव्वत भी मौजूद, सियासी ताकतें भी मौजूद, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दबता चला जा रहा है। उसी कश्ती को है खौफे तलातम सद है मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के, जो 300 तोकर जुल्म और वो ताकत और वो अजीमत की दास्तानें रकम करते हैं कि मालिक तू भी इस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारता है। आज वो उम्मत बीच में डाल के उस उम्मत की कश्ती हिचकोले खा रही है। हमारी फरियाद, हमारा इस्तगासा तेरे से है, मेरे मालिक हमारा खोया हुआ वकार बहाल कर दे और इस उम्मत को उस मर्तबा कमाल तक पहुंचा दे जिस मर्तबा कमाल तक ये उम्मत पहले पहुंची थी, इनका खोया हुआ वकार बहाल कर दिया जाए। आज भी हम अगर सजदों से अपने रब को मना लें और वो रूठा हुआ रब आज भी हमारी मदद के लिए आ जाए, तो फिर कोई कुव्वत, कोई ताकत हमें नहीं लौटा सकती। आइए हम सजदे से अपने मालिक, अपने खालिक और अपने राज़िक के हुजूर अपनी मोहब्बतों और अपनी उल्फतों का खिराज पेश करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म कुरान में 750 मरतबा के करीब दिया गया। और एक आखिरी बात अर्ज करके अपने मौजू को समेटना चाहूंगा। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वक्त आखिर आया तो आखिरी वसीयतें जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में की वो क्या थी? 2 वसीयतें थी हुजूर की आखिर जब हुजूर अय्याम मर्ज में थे, और आखिरी वसीयतें उसके बाद हुजूर ने कोई कलाम नहीं किया, वो यही था अस्सलात 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 अस्सलात। लोगों में तुम्हें नमाज की ताकीद करता हूँ, मैं नमाज की ताकीद करता हूँ। और दूसरा फरमाया, जो तुम्हारी मिल्क में तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लोनियां हैं उनके साथ उसने सुलूक की ताकीद करता हूँ। ये आखिरी 2 बातें थी जो हुजूर ने इरशाद की। हुकूकुल्लाह के हवाले से नमाज और हुकूकुल इबाद के हवाले से हुजूर ने कमजोरों के
हक उन तक पहुंचाने की ताकीद उम्मत को दी और उसके बाद फिर हुजूर इंतकाल कर गए। आइए हम सजदों से अपने रब को राजी रखें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दी।